ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھلتے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ اسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھوئی کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگیں انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانائی کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا۔ روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ دعا کے دوران لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم، اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کی گناہ گننے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں بے حیثیت پتھر، آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور گدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکروں اور غموں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔
अक्लमंद आदमी उस वक्त बोलता है जबकि दूसरे बोलने वाले चुप हो चुके हों। आप लोगों के लिए जो कुछ भी करते हो, लोग उसको तभी समझ सकते हैं जब आप वो करना बंद कर दो। इंसान का नफ्स उसको बुरी बात का हुक्म करता है। अगर इसे बेलगाम कर दें तो आदमी सरकश हो जाता है और ये उसे गुनाहों की तरफ ले जाता है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इब्तिदा करने के लिए अजीम होने की ज़रूरत नहीं, मगर अजीम होने के लिए इब्तिदा करना ज़रूरी है। महज लिबास की उम्दगी या कमतरी से इंसान की शनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को अल्लाह बनाता है और लिबास को इंसान। बेकरारी अल्लाह की तकदीर को नहीं मिटाती, लेकिन अजर सवाब को बढ़ा देती है। आँख दिल का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम मुसीबतें इस राह से बदन में दाखिल होती हैं। कब तक अपने खौफ को आज़ादी से घूमने फिरने दोगे? काबू करो इसको, कैद करो, और हो सके तो अपने खौफ को ही डरा दो। बुरों की हम नशीनी से तन्हाई बेहतर है, और तन्हाई से नेक लोगों की सोहबत बेहतर है। मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है। खामोश मजलूम खामोश तूफ़ान की तरह बड़ा ख़तरनाक होता है। इस तरक्की का न जाने ज़वाल क्या होगा। इंसान की कोई सिफत आज के इंसान में नहीं। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह अक्लमंद इंसान अक्लमंदी रखता है। अक्लमंदी किसी कोशिश या अमल का नतीजा नहीं, रूह की लिज़ा अल्लाह की याद और अल्लाह का ज़िक्र है। ऐसा मोमिन दोस्त तलाश करो जो अल्लाह की इताअत में तुम्हारी मदद करे, तुम्हें खैर पर उभारे, बुराई से डराए, तुम्हें उससे जब भी पहुँचे खैर ही पहुँचे। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। उसे पुकारने का कोई उसूल नहीं, वो हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुफलिस दिन से निकली हो। कुन ज़हनी, वजूदपन और हर धर्मी, ये तीनों किसी आदमी में जमा हो जाएं तो वो न दीन का रहता है न दुनिया का। छोटा जहन बड़े अखलाक नहीं पैदा कर सकता। कहीं इंसान खुदा बना बैठा है और कहीं खुदा को इंसान बना लिया गया है। वो शख्स फितरत का बुरा है जिसको लोग पसंद ना आए और जिसको लोगों की खुशी पसंद ना हो। जो अच्छी बात सुनो लिख लो, और जो लिखो उसे याद कर लो, और जो याद है उसे बयान करो। जाहिल के लिए सबसे अच्छी बात खामोशी है। सबसे बेहतरीन विरासत जो आइंदा नस्लों के लिए छोड़ी जा सकती है वो नेक चाल चलन और बुलंद किरदार है। अल्लाह हर उस जगह मौजूद है जहाँ तुम उसे पुकारते हो। फिर कैसे हो सकता है कि तुम्हारे दिल ने तड़प कर कुछ मांगा हो और उसने ना सुना हो? अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है। एक इंसान को पहले सुनना चाहिए और उसी से बोलने का फ़न सीखना चाहिए। इंसान में अगर ताकत है तो उसको कमज़ोर को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे दिन की नरमी और अच्छे सलूक में छुपी हुई है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जाओ और खामोशी से बैठो और उन बोलने वालों की खामोशी को सुनो। अगर तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से है तो फिर जस्तजू में लग जा। दिल की आग और आँख के पानी से अपनी रूह की लिज़ा तैयार कर। ख्वाहिशों वाला नफ्स रूह का नूर नहीं रखता। ख्वाहिशों से भरा नफ्स अल्लाह ताला से बहरा और अंधा है। अपने नफ्स से लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नफ्स को वसवसे बाहर से नहीं अंदर से बहकाते हैं। अल्फाज झूठे हो जाते हैं अगर अमल उनके खिलाफ हो। परहेज़गार शख्स की एक निशानी ये है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ
और आँख में हया होती है। नेकी की आरज़ू नाकाम हो तब भी वो नेकी है। बेफ़ायदा है ज़ीस्त में चाहने वालों का हुजूम, वो फलूस का पैकर तो काफ़ी है एक शख्स। तू मुखातब भी है करीब भी है, तुझको देखूं कि तुझसे बात करूं। ऐसी छाँव में न बैठा करो कि जो धूप से नफरत सिखाती हो। जो तलाश में थे उनको मिला नहीं, जिनको मिल गया है उनको कदर नहीं। नदामत से झुका हुआ सर बेहयाई से उठे हुए सर से बेहतर है। हम मिसालें तो ढूंढते हैं मगर खुद मिसाल नहीं बनते। मिलने के सिर्फ दो ही मेयार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात मिलते हों। उन लोगों को नज़रअंदाज करे जो आपको ख्वाब ज़दा और उदास करते हैं, जो आपको बीमारी और मौत की तरफ ले जाती है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करे, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। हक वहीं पर जताओ जहाँ किसी ने कोई हक दिया हो। सहावत वो भी है जो इंसान की कदर उसके दुश्मन के दिल में की पैदा कर देती है। कुदरत ने हम सब को हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो खिसेगा वही चमकेगा। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। बुलंद अपना किरदार कर, मीठी अपनी गुफ्तार कर, हर कोई करे तेरा एहतराम, ऐसा अपना मैयार कर। इंसानों से अच्छा सुलूक उनके इंसान होने के नाते कीजिए, न कि उनकी सहूलतों, उनके माल और मता या उनके मनसब की बुनियाद पर। नेकी की आदत डालो, इसलिए कि नेकी आदत से ही होती है। मखलूक का रिस्क उन पर तकसीम होता है, ये तयशुदा बात है जिसे अल्लाह ताला तय फरमाता है। चुनांचे किसी मालदार को अकल की वजह से मिला होता है और ना ही अपने माल की वजह से तकसीम होती है। कुछ लोग अपनी ज़बान की वजह से कभी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। मुस्तक़बिल की मंसूबाबंदी ज़रूरी है, गुज़रे दिनों पर बस पछताया जा सकता है। सब डूबे हुए हैं, कुछ सैलाब में, कुछ अना में, कुछ तकब्बुर में, कुछ अपनी ज़ात में और कुछ बेहिसी में। याद रखिए, जब आप किसी दूसरे की खुशी का सबब बनेंगी तो उसके बदले में आपको भी खुशी मिलेगी और साथ अल्लाह ताला के यहाँ अजर भी मिलेगा। अक्लमंद आदमी वो है जो हमेशा ऐसी नेकियां करे जो उसकी गलतियों और गुनाहों को मिटा दे। जब ये मालूम है कि इस्लाम उसी हालत में आ जाएगा जिसमें शुरू हुआ था, तो वह आदमी किस कदर जाहिल है जो लोगों की कसरत को दलील बनाता है। हर हाल में सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसका यकीन हो कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है, तो जान ले कि वो हलाक हो चुका है, क्योंकि खुद पसंदी सबसे बड़े गुनाहों में से है। जिसने लोगों से हया ना की, उसने अल्लाह से भी हया ना की। जिसके पास दुआ मौजूद है, उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं। इसलिए उसके फजल पर जान और दिल से सरीदा बजा लाओ। तुम्हें बड़ों के साथ पैदा किया गया है, तुम क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो? खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहता है तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है।
गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन बनते हैं। हम परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गए हैं, बस अब ये सीखना बाकी है कि ज़मीन पर इंसानों की तरह कैसे रहें। हर तकलीफ नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दी उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दी उस पर सब्र करो। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। थोड़ा देने से शर्माओ नहीं, क्योंकि खाली हाथ फेरना तो इससे भी गिरी हुई बात है। जब अक्ल ज़्यादा हो जाती है तो फालिश कम हो जाती है। ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये फाड़ खाए। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। मबरी के जाल ऐसे भी कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। जब खलवतों यानी तन्हाइयों को सवार लिया जाए तो अल्लाह ताला महफिलों को भी खूबसूरत बना देता है। हमारे पास कई रास्ते हैं, लेकिन हम खुदा की तरफ चलेंगे तो सुकून तक पहुँचेंगे। बेशक क़यामत के दिन लोगों को उनकी कोशिशों और नियतों के मुताबिक दर्जात मिलेंगे। या अल्लाह, हमें लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फ़कत हमारा दिन जलता है। हमें खामोशी से हमारे लाइबी में उनके शर से महफूज फरमा। जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ेगा, अल्लाह उसको उससे बेहतर चीज़ अता फरमाएगा, और उसकी अता मुख्तलिफ हो सकती है, और सबसे बेहतरीन अता अल्लाह से उन्स का बढ़ना और उसकी मोहब्बत, दिल का सुकून, उव्वत, निशात, खुशी और रब ताला की रज़ा का मिलना है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि उसका दिल खुल जाए, गुनाहों की बख्शिश अता हो, तकलीफ़ और दर्द से नजात हासिल हो और परेशानियों के बादल छट जाए, उसे चाहिए कि कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करे। हिकमतों में इसने बेहतरीन हिकमत से अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी अता करे। गलत पहचान कैद बन जाती है, न सिर्फ सामने वाले के लिए बल्कि खुद अपने आप के लिए भी। दीमक एक दिन में नहीं लगती, इमारत हमेशा ईंट एक गिरती है और कौमें कदम कदम से बर्बाद होती है। सब बीमार हैं, सब के सब। किसी का दिल बीमार है, किसी की रूह। कुछ लोग ऐसे भी हर दौर में मौजूद हैं जिन पर इब्लीस का जोर नहीं चलता। कुछ लोग रिश्तों को आजमाए बगैर नहीं रह सकते, वो सारी जिंदगी आजमाते ही रहते हैं। बहरों से जो बात करे वो इसराफी है, सुनने वाला वो कोई तो चुप काफ़ी है। दिखाई कौन देता है? वो जो बेदम और बेबस होकर गिर पड़ता है, वो जो चीख उठता है, वो सबकी नज़रों में आ जाता है। गुस्सा करना छोड़ दें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ मेहरबानियाँ करे, तो हमें भी उसके दूसरे बंदों के साथ मेहरबानी करनी है, क्योंकि वो उनके साथ भी इतना ही मेहरबान है। सो अगर हम उन पर सख्ती करेंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो कहीं हमारे हिस्से की मेहरबानी हमसे न छीन ली जाए। हम सब जानते हैं कि गीबत से बचना अल्लाह का हुक्म है, इसमें दो राय है ही नहीं। और गीबत आपकी और हमारी तमाम नेकियां उस गैर मौजूद शख्स को दे देती हैं और हम कंगाल रह जाते हैं। आप किसी इंसान को खो नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। आपको किसी इंसान के धोखेबाज इन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इंसान अगर साबित कदमी से दीन पर चलता है तो उसको उसके ज़र्रात भी नज़र आते हैं, और अगर दीन उसका रास्ता ना हो तो फिर उसके पहाड़ भी नज़र नहीं आते।
حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک یہ ختم نہ ہو جائے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک گناہ۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ وہ اسی بھروسے پر ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اگر زمین پر بیٹھے رہتے تو ہلاک ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اے مولا، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ اے ہمارے رب، اگر کوئی حاسد ہے جو ہمیں یا ہماری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ ہماری خوشی بھول جائے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے وصول کامیابی میں، کشاف گر میں پھول آنے سے پہلے ہار آتے ہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے افلاس سلاسل، ہر ایک کو درکار ہے ایک طرفہ مفلسی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشی کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے حیثیت شخص ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے راستہ کھو دیا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، فائدہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو اس پر محل کھڑا کر دے تب بھی گر جائے گا۔ مان لیں آپ کے رشتے میں مصلحت تو ہے، محبت نہیں۔ جہاں مضبوط بنیاد ہو وہیں پر گھر تعمیر ہو تو پائیدار ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسرے پر چھڑکیں گی اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے۔ لوگوں پر نہ ہنسے، لوگوں کے ساتھ ہنسے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوں پر، وعدوں پر اور چاہتوں پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جو تکیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
लोगों पर एक वक्त आएगा कि तेरी मुर्दा हो जाएंगी और जिस्म जिंदा होंगी। दिल का रास्ता अखलाक की सीढ़ी से जाता है। हम ये तवील जिंदगी अल्लाह ताला के बगैर नहीं गुजार सकते। अल्लाह ताला हमारा वाहिद दोस्त और मददगार है। बाकी सब रिश्ते फ़ानी हैं। सबके अंदर वंस और मतलब शामिल है। जिसने अल्लाह की मोहब्बत को समझा और अल्लाह को अपना दोस्त बनाया, उसके लिए अल्लाह नजात का रास्ता वहाँ से बनाएगा जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा। अनकरीब हम में से हर शख्स जान लेगा कि अल्लाह का डर कैसा होता है। हम बार बार उसे भूल जाते हैं। हम दुनिया में मगन होकर अल्लाह को भूल जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा नेकियां कर ले तब भी खुद को बहुत खास समझने लगते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि हर रात के वक्त उलमा को जमा करते, फिर आपस में बैठकर मौत और क़यामत के बारे में गुफ्तगू करते। फिर सब यूँ रोते गोया उनके सामने जनाजा मौजूद हो। अपनी तारीफ चाहना फितना है। लोगों से तारीफ की चाहत तुम्हें दिखावे में मुब्तला कर देगी और हलाकत और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा देगी। हम इससे अल्लाह की पनाह में आते हैं। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है। जब ये इंसान जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ नहीं देती। एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। किताबों का ख़जाना हर कोई नहीं रख सकता। इसके लिए इंसान का फराह दस्त, इल्म दोस्त और पुशादा दिल होना ज़रूरी है। तालीम एक ऐसा कारोबार है जो बाकी कारोबार को पैदा करता है और इसी उरूज तक पहुँचाने में उस्ताद का ही हाथ होता है। कामिल ज़िक्र वो होता है जिसमें ज़िक्र इलाही करने वाला ज़बान के साथ साथ दिल को भी ज़िक्र में शामिल करे। अल्लाह जिसके साथ हो उसका रंज और गम से क्या वास्ता। वक्त तो उसका है जो बदलता साथ छोड़ बैठा। दौलत वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के ताव साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब भी ज़माने वालों को अदाएँ रखते हैं। न देर से मिलता है और नारी जल्द, बस अल्लाह की रज़ा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हो। बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि बाप की लगाई हुई पाबंदियाँ ठीक थी, और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि उसके रब की लगाई गई पाबंदियाँ ठीक थी। महशर के दिन हर छुपी हुई चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। हर हदापार खुद रुसवा हो जाएगा। जब आप अपनी खुशियों का गला घोट कर परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र करती है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा कर जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी गर्दन झुका कर रखता है, और बेशक आज से अल्लाह को पसंद है। खुद को मोहब्बतों से सवारो। यकीनन मोहब्बतें तो सदा जवान रहती है। अगर तुम्हारी अपनी आवाज़ तुम्हें दिलासा नहीं दे सकती तो फिर कोई अल्फाज हाफी नहीं। सब्र की इस जंग के बाद तुम शुक्र की फतह पाओगे। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें पसंद करता है। ऐलान करते करते मौत का गला बैठ गया, लेकिन तो दुनियादारी की बारीकियों में लगा रहा और नज़र के वक्त मौत के इशारे को समझा। हाय अफसोस, खुदा जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब एक भी पत्ती सूख कर पीली होती है तो पूरे दरख्त को उसका खामोश मम होता है। दुनिया बहुत पुरानी है, लेकिन इसका नयापन कभी खत्म नहीं होता। हर सोचते हुए और हर काम करते हुए ये ज़रूर देखें कि ये सोच और काम हमारे मकसद के साथ जुड़ा हुआ है भी या नहीं। तार लो ख़त्म हो जाए
پھر بھی بڑے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف چل۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ آسان اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے، تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سلانا تھا، کملی والے لے آنا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہتی ہے کہ مالا مان ہو، عشق کہتا ہے کہ پیمان ہو۔ اگر کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ اگر کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچے یار کو۔ اپن کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے وہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔